हाँ, तो सॉरी दोस्तों यार, फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था तो मुझे ये वीडियो बीच में स्टॉप करना पड़ा। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? माधवाचार्य वाला तो हम लोग ने देख लिया कि आत्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग होते हैं। द्वैत अद्वैता निम्बारकर ने किया था। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी ह्यूमन्स आर बोथ डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट, वो भी बोल दिया मैंने। शुद्ध अद्वैता वल्लभाचार्य, अकॉर्डिंग टू दिस गॉड एंड सोल्स आर नॉट डिस्टिंक्ट बट वन। द फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल बिलोंग टू पुष्टि मार्ग संप्रदाय। For the followers of the sect, Srinathji temple at Nathdwar, Rajasthan, are the composition of 8 poets. And the compositions of the 8 poet Ashtachap are center to worship by the followers of this sect. तो जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है वो इसी फिलॉसफी पे काम करते हैं, शुद्ध अद्वैता। और ये लोग बोलते हैं कि गॉड और भगवान दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही है। उसके बाद आते हैं अचिंत्य भेद अभेदा। अचिंत्य भेद अभेदा चैतन्य महाप्रभु ने ये सेक्ट शुरू किया था। दिस वेदांत सब स्कूल वॉज फॉलोड बाय गोंडिया वैष्णदेव। दिस स्कूल is understood as an integration of the strict dualism Dvait theory of Madhavacharya and the qualified monism with Vasishtha of Ramanuja. According to this school, the Supreme Lord and individual souls are simultaneously one and different. ISKCON follow this philosophy. तो ये लोग बोलते हैं कि जो सुप्रीम गॉड है वो एक है, और एक भी है और अलग भी है, ठीक है। और इस्कॉन वाले जो है वो यही फॉलो करते हैं। अब यार गाइस, मेरे को ये वीडियो 2 पार्ट्स में अपलोड करने पड़ेंगे, थोड़ा सा था यार, चलो कोई नहीं। सो प्रार्थना त्रयी in Vedanta philosophy, the Upanishads, the Bhagavad Gita and the Brahma Sutra are considered to be the primary source of knowledge. These 3 texts together are called Prasthana Trayi, ठीक है, भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। स्वामी विवेकानंद contribution to the culture and philosophy. According to Netaji Subhash Chandra Bose, Swami ji harmonize the East and the West, the religions and science, the past and the present, and that is why he is great. Our countrymen have gained unprecedented self-respect, self-reliance, and self-assertion from his teaching. Swami Vivekananda, as spiritual scientist, wandered all over India, saw the abject poverty and backwardness of the masses, and understood the cause of Indian downfall. He addressed the World's Parliament of Religion held in Chicago, US in 1893. He made a Western intelligentsia to recognize the great culture and tradition India had and become the message of the Indian wisdom to the Western world. He was able to build a bridge between India and Western culture and end the cultural isolation of India. The Indian masses were given a proper understanding of the great spiritual heritage of the country. Swami Vivekananda founded the Ramakrishna Mission in 1897. Their monks propagate, practice Vedanta, undertake various forms of social services, and conduct reliefs and rehabilitation work during the natural calamities. तो स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को हमारे कल्चर के बारे में बताया, और जो इंडियंस थे वहाँ पे या बाहर, उन सबको बताया कि हमारा कल्चर कितना अच्छा है एंड कैसे करना चाहिए, कैसी चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए, और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी बताया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन करके इस्टेब्लिश किया था, जो वेदांता पे बेस्ड है और नेचुरल कैलेमिटीज़ में लोगों की मदद करता है। ये था वेदांत स्कूल। स्वामी विवेकानंद जी इसी स्कूल के अनुयायी या फिर फॉलोअर थे, आप कह सकते हैं। हेटेरोडॉक्स स्कूल, हेटेरोडॉक्स में मैंने बताया था कि वेदास पे बिलीव नहीं करते थे, बट क्वेश्चंस ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ये उनका रहता था। तो proponents do not believe in the originality of the Veda and questions the existence of the God. They are divided into 5 major subclasses, sub-schools: Buddhism, Jainism, Lokayat, Ajna and
आजीविका। सो बुद्धिज़्म जैनिज़्म मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, अजनबी चैप्टर नंबर 14 और आजीविका भी मैंने पढ़ा दी है, तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चारवाका स्कूल और लोकायत फिलॉसफी, ये पढ़ेंगे हम लोग चारवाका। देखिए चारवाका, नो वर्ल्ड देन दी करंट वर्ल्ड, बिलीव इन टच एंड एक्सपीरियंसेस, यही एक फ़िलॉसफी है। टच एंड, मैंने आपको पिछले बताया था कि क्यों हेटेरोडॉक्स स्कूल ऐसे हैं। तो चारवाका को मैंने कैसे याद किया था? चारवाका प्रत्यक्ष प्रमाण, चारवाका प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, जो प्रत्यक्ष दिखे वो प्रमाण है। तो इसी स्कूल में बोला था ना मैंने कि ये लोग आकाश भी देख सकते हैं पर उसको टच नहीं कर सकते, सेंस नहीं कर सकते, ये लोग आकाश पे बिलीव नहीं करते थे। हम लोग पंच महाभूत की बात करते थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, ठीक है। पर ये लोग ईथर को नहीं मानते, स्काई को नहीं मानते। और इसी फिलॉसफी को लोकायत फिलॉसफी कहा जाता है। देखिए बृहस्पति इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल। एक मिनट, हाँ दोस्तों मुझे एसी बंद करने दो। हाँ बंद हो गया, चलिए। बृहस्पति इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल which is supposed to be one of the earliest school to develop the philosophical theory. This philosophy is old enough to find mentions in Vedas and the Brihadaranyaka Upanishad. The Charvaka school was the main propounder of the materialistic view to achieve salvation. ये बहुत ज़्यादा प्रोपाउंड करता था, बहुत ज़्यादा फोर्स करता था मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का। एज इट वॉज geared towards the common people, the philosophy was soon dubbed as Lokayat or something derived from the common people. So ये इतना ऐसा था कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो गया, तो इस फिलॉसफी को लोग लोकायत फिलॉसफी भी कहने लगे, मतलब फिलॉसफी ऑफ कॉमन पीपल। द वर्ड लोकायत इज ऑल्सो मीन्स अ कीन अटैचमेंट टू द फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड, लोका। सो लोकायत मीन्स कि आपका बहुत इंटरेस्ट है इस दुनिया के, इस लोक से जुड़ने का, ज़्यादा अटैचमेंट है, जुड़ाव है। द प्रोपोनेंट आर्ग्यूड फॉर अ कंप्लीट डिसएग्री ऑफ any world beyond the world that is inhabited by a person. They denied the existence of any supernatural or divine agent who could regulate our conduct on the earth. They argued against the need to achieve salvation and also denied the existence of Brahma and God. They believe in anything that could be touched and experienced by the human sense. Some of their main teachings are as follows. तो ये लोग जो चारवाका लोकायत वाले बोलते थे, यही बोलते थे कि मैं भगवान पे नहीं मानता, मैं साल्वेशन पे नहीं मानता, इस दुनिया के अलावा कोई दुनिया नहीं है, मैं वो भी नहीं मानता कि इस दुनिया के अलावा कोई दुनिया है, तो जो है मेरे लिए वो यही है और इसके आगे कोई दुनिया नहीं है। ये लोग उन चीज़ों पे बिलीव करते थे जिस चीज़ों को वो लोग देख पाए, सुन पाए या टच कर पाए, मतलब देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाए और टच कर पाए। उनकी कुछ फिलोसफी, दे आर्ग्यूड अगेंस्ट गॉड एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द अर्थ, द प्रिस्टली क्लास. They argued that a Brahma manufactures false rituals as to acquire gifts. Brahmins, they argued that Brahmins manufactures false rituals so as to acquire gift, dakshina, from the followers. Man is the center of all activities and he should enjoy himself as long as he lives. He should consume all earthly goods and indulge in sensual pleasures. The Charvaka do not consider ether as one of the five essential elements because he cannot experience through perception. Hence, they say that the universe consists of only 4 elements: fire, earth, water, air. This school argue that there is no other world after this one. Hence, death is the end of the human being, and pleasure should be the ultimate objective of life. Hence, they propounded the theory of eat, drink and be merry. मतलब खाओ पियो और ऐश करो, वो लोग ने इस थ्योरी को किया। तो वो लोग बोलते हैं कि यार इस दुनिया के बाहर कोई दुनिया है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इस दुनिया में हूँ तो मैं अपनी प्लेजर लूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, ऐश करूँगा। हाँ, यही स्कूल मैंने आपको जैसे बताया कि ईथर पे मानता नहीं, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते थे। तो उन लोग के हिसाब से सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं, 4 एलिमेंट्स, इधर फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर,
ये लोग कहते थे कि ब्राह्मण लोग फॉल्स यानी झूठी चीज़ें बोलते थे ताकि उन लोगों को दान दक्षिणा और पैसा मिले, इसलिए वो लोग ब्रह्म पे मानते नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद एक दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बॉल्स। बॉल आर डिफरेंट मिस्टिक फिलोसफी। बॉल्स आर वॉन्डरिंग मिस्टिक ministrels from West Bengal, Assam, Tripura, and Bangladesh. The origin of baul is not clear, but the word can be found in Chaitanya Charitamriti written by Krishna Dasa Kaviraja. They have great specific influence on the culture of Bengal. Rabindranath Tagore was also influenced by their song and lifestyle. Baul songs are listed under UNESCO intangible culture heritage of humanity. However, under country Bangladesh and not India. तो बाउल यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर में, पर बांग्लादेश में, इंडिया में नहीं है। बाउल लोग कौन थे? ये लोग घूमते रहते थे यहाँ वहाँ और फिर वॉन्डरर्स थे। दे आर फ्रॉम द म्यूजिकल कम्युनिटीज़ एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ द प्रोपोगेशन ऑफ बाउल म्यूजिक. They can be identified by their clothes, uncut hair style, and unique musical instrument. Musical instruments of the baul include the ektara, dotara, dhol, dungi, ghunghur, nupur, bamboo flute, etc. Their communities consist of different sects and they were influenced by Vaishnavism, Hindu, Tantrism, Buddhism, and Sufism. Way of achieving salvation, spirit of life, and religious thoughts are all mystical expressed in their music. Famous baul saint and singer include Fakir Lolan Shah, Baba Pagla Shah, Abdul Karim, Purana Das Baul. So ये लोग म्यूजिकल कम्युनिटी, the only way to achieve salvation is म्यूजिक के थ्रू बताते थे ये लोग एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गई चैप्टर ख़त्म दोस्तों, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। अब स्कूल्स ऑफ फिलोसफी मैंने सब पढ़ा दिया है। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविका, अजैना, सांख्य, योगा, न्याय, वैशिष्टिक, मीमांसा, चार्वाका, लोकायत फिलोसफी, ये सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दी, ऑलमोस्ट 1 घंटे में, छोटा सा चैप्टर लेकिन कवर कर दी। तो दोस्तों मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग को मेरी टीचिंग्स अच्छी लग रही हैं। और देखिए सपोर्ट कीजिए थोड़ा, क्योंकि मैं फ्री में सब कुछ करवा रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं फ़िलासफ़ी एंड जोग्राफ़ी शुरू करूँगा। पर हाँ, जिन लोगों ने ये नहीं सुना कि मैंने और एक सर ने साथ में मिलके हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की ट्रिक्स बना रखी हैं, जिससे आपको बहुत इजीली आप आर्टिकल्स याद कर पाओगे, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ याद रख लोगे। और आर्टिकल्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 5 या 6, तो सोच लो मार्क्स कितने अच्छे हैं। नॉट ओनली फॉर यूपीएससी यार, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी अगर आप लो, किसी लॉ एग्ज़ाम में जाओ तो फटाक से क्रैक हो जाएगा, तो टेंशन मत लो। वो देखो, लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग इसको फ्लिपकार्ट से बाय कर लो। नोशन प्रेस पे बहुत फ्लिपकार्ट नोशन प्रेस पे बाय कर लो। अमेज़ॉन पे बहुत प्राइस दिखा रही है, मैं बात कर रहा हूँ पर कुछ निकल नहीं रहा वहाँ से, तो आप लोग फ्लिपकार्ट पे जाएँ, वहाँ से बाय कर लें। मैं लिंक सबके दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो, बहुत अच्छी बुक है। मेरे शॉर्ट्स भी देखो, मैंने उसमें ग्लिम्स दी हुई है कैसे याद करना है, तो जाओ देखो, ठीक है। और तब तक के लिए मैं नए चैप्टर्स के साथ आऊँगा। ये 19 चैप्टर और 19 और 20 चैप्टर में एक साथ कर दूँगा कल, ठीक है। संडे है कल कर दूँगा और अपलोड भी कर दूँगा। अभी ये वीडियो लाइव जाएगी अभी आज रात को, तो ठीक है, चलते हैं। और जय हिंद, जय भारत।